Students, good morning. As you already know, we were talking about the chapter 4 executive of class 11th political science. We have read about the legislature and executive are interdependent in parliamentary system. As you already know, we have two people doing the simultaneous work who are the part of both legislative as well as executive. As you have already seen that the council of ministers, the cabinet ministers are also part of the legislative, means they are the member of either Lok Sabha or Rajya Sabha, as well as they are the minister, means they are leading the whole their ministry, whole the bunch of bureaucracy, whole the bunch of officers they are leading, means they are holding simultaneously both posts of legislative as well as executive. In a democracy, the government is divided into three organs. That first one is the legislative, executive and judiciary. As you already know, the legislative works the job of law making, the executive implements those law, and judiciary is the one who do check and balance. The word executive means a body of person that looks after the implementation of rules and regulation in actual practice. They implement and looks after the implementation of rules and regulation in actual practice. In the case of Indian government, one body may take policy decisions and decide about the rules and regulation, while the other one would be in the charge of implementing those rules. इंडिया में आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्ट होते हैं लेजिस्लेटिव विंग के, जो लॉ को बनाते हैं, और जो अदर पार्ट होता है जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, दैट इज एग्जीक्यूटिव. उनका काम ये होता है कि जो भी रूल्स एंड लॉ बनाए गए हों लेजिस्लेटिव के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट करना. The organ of government that primarily looks after the function of implementation and administration is called executive. ये organ है गवर्नमेंट का जो प्राइमरली जिसका एकमात्र काम है that the function of implementation and administration, that is called executive. जो क्या करता है? implementation of law and rules as well as administration. The legislatures frames the laws and the executive enforce them to run the administration. जितने भी लेजिस्लेचर होते हैं वो क्या करते हैं? लॉ को फ्रेम करते हैं, और एग्जीक्यूटिव क्या करता है? इन्फोर्स करता है them to run the administration. In the presidential system, the president is the head of state as well as the head of government. जैसा कि आप यूएस में देखते हैं, in United States there is presence of presidential system, but in India we have parliamentary system. यूएस में क्या होता है कि यूएस में जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ स्टेट मीन्स हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज हेड ऑफ गवर्नमेंट, और लेजिस्लेचर में भी हेड होता है. बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है. इंडिया में जो सिस्टम है उसमें हेड ऑफ स्टेट जो है वो सेपरेट बॉडी है, सेपरेट पर्सन है. इंडिया में जो हेड ऑफ स्टेट है दैट इज प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद. आप उनको देखेंगे उनका कोई फंक्शन लेजिस्लेटिव वाला नहीं है, वो सेपरेट बॉडी है. जितने भी लॉज बनाए जाते हैं आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा, वो अल्टीमेटली लॉ बनता है. जब भी कोई बिल लॉ तब बनता है जब उस पर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है, आफ्टर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. इन दिस सिस्टम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज वेरी पावरफुल बोथ इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस. Countries with such a system including the United States, Brazil and most nations in Latin America. आप अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स देखेंगे, ब्राज़ील देखेंगे, और जितने भी लैटिन अमेरिका में साउथ अमेरिका के जितने भी आप नेशंस देखेंगे वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा प्रेवलेंट हैं. और यहाँ पे जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है वो बोथ इन थ्योरी एज वेल एज इन प्रैक्टिस बहुत ही पावरफुल है. इफ़ यू कंपेयर देम विथ इंडिया, इंडिया में जो है वो नॉमिनल हेड बस है, प्रेसिडेंट का ज़्यादा फंक्शन नहीं है. प्रेसिडेंट वही काम करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. In a such a manner, the legislature controls the executive and in turn it is controlled by the executive. ऐसे मैनर में क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर है वो कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को, और इन टर्न इट इज कंट्रोल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव. दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं. Different types of executives are parliamentary, semi-presidential, presidential, monarchical and ceremonial. Different types of executive हैं, but in India it is the prevalent one is the parliamentary type of executive. यहाँ पे जो मेंबर होते हैं वो both मेंबर होते हैं किसके? लेजिस्लेटिव के भी मेंबर होते हैं एज वेल एज एग्जीक्यूटिव के. जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं दे आर मेंबर्स ऑफ बोथ. They are member of Lok Sabha as well as they are heading some ministry. Means they are performing the function of both
legislative as well as executive. A distinction can be made between the parliamentary and the presidential executives. In parliamentary system, the real head of executive is the prime minister. जैसा कि इंडिया में होता है, जितने भी पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, किसी को पोस्ट पे अपॉइंट करना हुआ, किसको रिमूव करना हुआ, ये सारे फंक्शन जो है ये प्राइम मिनिस्टर करता है. ही इज द इन रियलिटी डी फैक्टो. There are two terms we use, de jure and de facto. In reality, he is the person who functions on the name of prime minister. The president is the nominal head. President वही काम करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर उनको एड एंड एडवाइस करता है. The prime minister is assisted by the council of minister and advises the president. This is what happens in our country. The prime minister is assisted by the council of minister. जैसा कि आप देखते होंगे कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करने का काम प्राइम मिनिस्टर करता है. In the same way, the prime minister is assisted by his colleagues, means his council of ministers. The parliamentary form has many mechanisms that ensures that executive will be answerable to and controlled by the legislature और पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्स. दैट मीन्स जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम हमारे यहाँ जो मैकेनिज्म है उसमें इंश्योर होता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव होंगे, जो भी ब्यूरोक्रेट्स होंगे, जितने भी आईएएस होंगे, आईपीएस होंगे, जितने लोग भी होंगे, दे विल बी आंसरेबल टू एंड कंट्रोल्ड बाय द लेजिस्लेचर. दैट मीन्स पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव. दिस इज द वे वी कंट्रोल ईच अदर. मीन्स अगर आपके यहाँ कोई डीएम है, एसपी है, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास जाते हैं, अपने एमएलए एमपी के पास जाते हैं एंड यू से कंप्लेंट टू देम कि सर दिस पर्सन इज नॉट वर्किंग वेरी वेल. और जो जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं, आईएएस आईपीएस हैं, वो किसके अंडर आते हैं आपके स्टेट में? आपके जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर हैं, तो वो उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस करते हैं, वो उनको काउंटर करते हैं, उनको आंसरेबल बनाते हैं, उनको अकाउंटेबल करते हैं कि वाई यू आर नॉट वर्किंग फॉर द पीपल. सब एक दूसरे से इंटरचेंज है, इंटर रिलेटेड है. कैसे इंटर रिलेटेड है कि कैसे पीपल जो है इलेक्ट करते हैं लोगों को, मीन्स एमपी एमएलएज को, वो उनको आंसरेबल बनाते हैं. एमपी एमएलए कैसे आंसरेबल है लोगों को, वो उनके वोट लेने जाएंगे अगले 5 साल में. दैट्स वाई दे आर आंसरेबल टू द पीपल. So the constitution adopted the parliamentary system of executive for the government both at the national as well as state level. आपके नेशनल लेवल में भी आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो रूल करता है किनके ऊपर? उनके ऊपर रूल करता है. दे रूल ओवर द executives. In the same way at the state level you can see the chief minister rule over the IAS, IPS and different bureaucrats. The president enjoys the right to be informed of all important matters and functioning of the government. जो प्रेसिडेंट हैं वो एंजॉय करते हैं राइट टू बी इन्फॉर्म. मीन्स जो भी काम, जो भी वर्क हो रहे हैं देश में, जो भी एक्टिविटी हो रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है किसको? प्रेसिडेंट को. और उसके बारे में सब कुछ जानते रहते हैं. और ये किसका फंक्शन है? दिस इज द फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. The president has veto power by which he can withhold or refuse to give assent to the bills passed by the parliament. और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पावर है प्रेसिडेंट के पास, वो है वीटो पावर. जो कोई भी लॉ बिल आता है प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए, प्रेसिडेंट उसको रिफ्यूज कर सकता है या होल्ड कर सकता है एसेंट देने के, मीन्स सहमति देने पे, उस पर अपना सिग्नेचर करने पे. कोई भी बिल लॉ तब बनता है जब उसके ऊपर सिग्नेचर होता है प्रेसिडेंट का. Every bill is passed by the parliament goes to the president for his assent before it becomes law. That is what I was talking about. कि जो भी बिल होगा तब तक वो लॉ नहीं बनेगा जब तक वो प्रेसिडेंट का उसके ऊपर एसेंट नहीं मिलेगा, जब तक उसके ऊपर प्रेसिडेंट अपना सिग्नेचर नहीं करेगा. The vice president is ex officio chairman of the Rajya Sabha and acts for the president when the office of president falls vacant. अब यहाँ पे रोल आता है वाइस प्रेसिडेंट का. वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. मीन्स जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है जो हेड करता है लोकसभा को, इन द सेम वे राज्यसभा में जो उसका चेयरमैन होगा वो होगा वाइस प्रेसिडेंट. और ये परमानेंट सीट होती है, हमेशा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का. और एंड एक्ट्स फॉर द प्रेसिडेंट व्हेन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट. जब भी प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है वो वैकेंट हो जाती है, चाहे उसके कोई भी रीजन्स हो, इन दैट सिचुएशन द वाइस प्रेसिडेंट विल
work. The vice president will function as president. That's all for today, students. We will talk about the council of minister tomorrow. Thank you so much.